Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. Today's lecture is a really important lecture with respect to the public key cryptographic algorithm. The algorithm we are going to discuss today is the RSA. So let's take a quick revision of the all previous relevant session. In previous lectures, we have discussed and we have done a lot of work relevant to the number theory concepts, and we have tried to understand that how we can find out the GCD of large numbers, and how we can find out the multiplicative inverse, and what are the relatively prime numbers, and what could be the solution of finding the very large power or base with the modulo and finite field structure. So these three algorithms were relevant to the finding the finite field of any number. We have done a lot of examples where we have seen that if we want to calculate the large number with the modulo something number, then what could be the ease of the formulae, these three formulae that can help us to calculate it very easily. So in today's lecture, our major focus will be RSA, that is one algorithm and very important algorithm in public key cryptography. So before proceeding, let's discuss the basic idea of public key cryptography. आप लोगों को ये ड्राइंग मैंने पिछले लेक्चर्स में भी दिखाई थी. इसमें हमने ये देखा था कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी सेंडर ने डेटा सेंड करना होगा तो वो एक पब्लिक की इस्तेमाल करेगा, और ऑन द अदर हैंड अगर वो इसे डिक्रिप्ट करना चाहता है तो रेसिपिएंट अपनी प्राइवेट की के जरिए से इसको डिक्रिप्ट करेगा. सो इंक्रिप्शन के लिए और की चाहिए होगी और डिक्रिप्शन के लिए हमारे पास और की चाहिए होगी. So let's check out what is the RSA. So RSA is actually named after three persons that have worked together in MIT in 1977, that is Revis, Shamir and Adelman. So RSA is named after these three scientists who have worked in the idea of creating such algorithm that is very helpful, and that is a very complex interpretation and calculation and mathematical structure to finding such keys that could be used as a different key for encryption and different key for decryption. And this is best known and widely used public key scheme. So you should know all the things, relevant things about the RSA. So these are some of the key features of RSA algorithm. RSA algorithm is popular exponential in the finite field over integers including the prime numbers. इस लाइन को पढ़ के आपको ये बात समझ आ गई होगी कि जो लास्ट 3 लेक्चर्स से हम नंबर थ्योरी और प्राइम नंबर्स और प्राइम फैक्टराइजेशन और उसको फाइनाइट फील्ड के अंदर उसकी एक्सपोनेंशियल फाइंड आउट कर रहे थे, उसकी वजह क्या थी. क्योंकि एल्गोरिदम जो है ये प्राइम नंबर एंड फाइनाइट फील्ड यानी मॉड लेना और एक्सपोनेंशियल यानी कि उनकी जो बेस है या पावर है, एक्सपोनेंशियल इज द पावर ऑफ एनी बेस, तो ये सारी चीजें बेस कर रही थी आरएसए एल्गोरिदम के लिए, यानी ये सारे इंग्रेडिएंट्स थे आरएसए के. तो ये एक तो फीचर ये है. नेक्स्ट फीचर इसका ये है, द इंटीजर यूज्ड बाय दिस मेथड आर सफिशिएंटली लार्ज मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सॉल्व. इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बताए हैं वो लार्ज नंबर को हैंडल करने के लिए बताए हैं कि लार्ज नंबर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे लेंगे, लार्ज नंबर में हम मॉड कैसे कैलकुलेट करेंगे पावर अगर आ जाती है, या लार्ज नंबर में हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो ये सेकंड फीचर है इसका RSA एल्गोरिथम का. थर्ड फीचर ये है, ये जो हमें ऑलरेडी पता है कि there are two set of keys in this algorithm, one will be the private key and other will be the public key. आपको ये वो याद भी होगा कि मैंने इजिप्शियन रूल बताया था कि इजिप्शियन जो हिस्ट्री है उसमें लोगों के दो नाम होते थे, एक पब्लिक नेम होता था जो सबको पता होता था और एक फैमिली नेम होता था या गुड नेम होता था जो सिर्फ उसकी फैमिली को पता होता था.
तो इसी तरह यहाँ पर भी हमारे पास जो प्राइवेट की है वो जिस शख्स की यानी जिस भी सिस्टम की प्राइवेट की है वो उसी के पास रहेगी, वो कहीं पे भी शेयर नहीं होगी। लेकिन पब्लिक की शेयर हो रही होगी। पब्लिक की के बारे में हमने बहुत सारी चीजें भी और भी देखनी है कि हम पब्लिक की अगर सभी को पास पता है, सभी को पता है, तो हम इसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है और हम इस पब्लिक की को कैसे सिक्योर कर पाएंगे, कौन से ऐसे मेथड्स हैं। लेकिन आज के जो लेक्चर है उसमें सिर्फ हम आरएसए के बारे में ही बात करेंगे कि आरएसए में क्या एल्गोरिदम क्या है। सो इस एल्गोरिदम के 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास, इट विल जनरेट द आरएसए मॉडुलस। हमने आरएसए मॉडुलस कैलकुलेट करना है, यानी मॉड कैलकुलेट करना है, मॉड इनिशिएट करना है। और उसके बाद हम एक नंबर लेंगे ई ड्राइव्ड नंबर, और फिर हम पब्लिक और प्राइवेट की को कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। सो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन से पहले हम आरएसए का की सेटअप देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, जनरेट दी आरएसए मॉड्यूलस। इसको कैलकुलेट करने के लिए, मॉड्यूलस को कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने दो लार्ज प्राइम नंबर्स रैंडमली सेलेक्ट करने हैं। जैसे यहाँ पर पी एंड क्यू लिखा हुआ है, each user generate a public private key pair by selecting two large prime numbers at random। यानी p और q कोई से भी दो नंबर, लेकिन इनके लिए शर्त ये है कि ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर होने चाहिए। ओके उसके बाद क्या करना है, कंप्यूट देयर सिस्टम मॉडुलस बाय मल्टीप्लाइंग बोथ नंबर। फिर p और q इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने n कैलकुलेट कर लेना। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टोशंट ऑफ एन कैलकुलेट करना है। हमें ये पता है कि टोशंट ऑफ एन में, क्योंकि ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, p और q दोनों प्राइम नंबर्स हैं, इसलिए p-1 और q-1 हमें करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि अब आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में टोशंट ऑफ एन को बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया है कि ये हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1 में जो 3 स्टेप्स हो चुके हैं, स्टेप 2 के अंदर हमने एक नंबर ई कैलकुलेट करना है। ई कुड बी एनी नंबर, बट इस नंबर के लिए हमारे पास दो रूल्स होना बहुत जरूरी है। रूल नंबर 1 ये है कि जो ई आप सिलेक्ट करेंगे उसकी वैल्यू 1 से बड़ी और टोशंट ऑफ एन से छोटी होनी चाहिए। पहला रूल तो ये है। और दूसरी प्रॉपर्टीज की ये होनी चाहिए कि ये रिलेटिवली प्राइम भी हो विद द टोशंट ऑफ एन, यानी ई और टोशंट ऑफ एन दोनों 1 के अलावा किसी और टेबल पर इकट्ठे नहीं आते होंगे। ये मैंने ग्रीन कलर में लिखे हैं। तो ये दोनों रूल्स, यानी रूल नंबर 1 क्या है कि इसकी वैल्यू टोशंट ऑफ एन और 1 के दरमियान में होनी चाहिए, और दूसरा ये रिलेटिवली प्राइम भी होना चाहिए या को प्राइम नंबर भी होना चाहिए। सो दो रूल्स की तो हमें समझ आ गई। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोगों ने क्या करना है, जब हमने ई कैलकुलेट कर लिया फिर हमने डी कैलकुलेट करना है। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस एल्गोरिथम। In the next step we will select the d by the following equations. You have different options to calculate it. For finding the d you can multiply e जो आपने पहले सेलेक्ट किया हुआ है उसको e को d के साथ मल्टीप्लाई करके टोशंट ऑफ n से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, और जवाब अगर 1 आता है यानी कॉन्ग्रेंट टू 1 है, रिमाइंडर 1 आता है, तो वो भी d हमारा होगा। और आप ये स्टेटमेंट भी देख सकते हैं, यानी d को e के साथ मल्टीप्लाई करके फिर d से मल्टीप्लाई करें और फिर इसको रिमाइंडर इसका फाइंड आउट करें विद द टोशंट ऑफ n दैट शुड बी 1। और सिंपल, क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी पता है, d इज कॉन्ग्रेंट टू e इनवर्स मॉड टोशंट ऑफ n। सो नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि वो ये वाली स्टेटमेंट यूज करें। और अब आपको ये समझ आ गई होगी कि मैंने लार्ज नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना क्यों बताया था। एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम की मदद से आप किसी भी बड़े से बड़े नंबर का इनवर्स किसी भी फील्ड के अंदर फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी ये वो वाली एग्जांपल है जिसमें हमने a1 a2 a3 b1 b2 b3 कैलकुलेट किया था, और फिर पूरे को हमने इनवर्स टिल द एंड ऑफ द होल कैलकुलेशन सॉल्व किया था।
अगर हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली हैं तो हम दो की पेयर्स क्रिएट करेंगे, एक होगा पब्लिक की पेयर और दूसरा होगा प्राइवेट की पेयर। पब्लिक की में हम ई और एन डाल देंगे और प्राइवेट की के अंदर हम डी और एन डाल देंगे। सो पब्लिक की पेयर में आप देख रहे हैं की कोई और है और प्राइवेट की के अंदर हमारे पास डिक्रिप्शन के लिए वी हैव डिफरेंट की दैट इज डी। So encryption or decryption is very simple. For encryption, suppose we have M as a plain text. तो M जो भी plain text है उसकी power E के साथ encryption करेंगे। E is the public key, आपको पता ही है E एक public key है, उसकी power लेंगे with the public key and mod and find out करके उसको C में डाल देंगे। और इसी तरह हम अगर decryption करना चाहते हैं तो हम साइफर टेक्स्ट के ऊपर डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पर डी लिखा हुआ है मॉड एन। अब आप देख रहे हैं कि इंक्रिप्शन के लिए ई इस्तेमाल हो रही है और डिक्रिप्शन के लिए डी, यानी दोनों की अलग है। मॉड एन एन जो है वो हमारा स्टैटिक है, सेम है। और इसी तरह हमने प्लेन टेक्स्ट और जो हमारा साइफर टेक्स्ट है वो जनरेट कर लिया। सो लेट्स कंक्लूड विद द एल्गोरिथम और उसके बाद हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर ये है कि हमने दो नंबर्स ले लेने पी एंड क्यू, दैट शुड बी प्राइम नंबर। दूसरा स्टेप यहाँ पे ये है कि आपने n कैलकुलेट कर लेना है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ नंबर, दैट इज p मल्टीप्लाई बाय q। तीसरा आपने क्या करना है, टोशंट ऑफ n फाइंड आउट कर लेना है और आपको पता है टोशंट ऑफ n इज इक्वल टू p माइनस वन इंटू q माइनस वन। फोर्थ के अंदर आपने E सिलेक्ट करना है। फिफ्थ स्टेप के अंदर आपने D सिलेक्ट करना है और आपको रूल्स का पता है E के लिए क्या करना पड़ेगा और D के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। सो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, ये सारी चीजें आपको उसी से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएंगी। So let's check out the example in the coming slide. For example, we have two different large prime numbers. P is equals to 17 and Q is equals to 11. Both are the prime numbers. So the rule number one is that both numbers should be prime. And for the ease of the understanding, we have used a very small number, that is 17 and 11. Otherwise, in the real world application, we have very large numbers, large two prime numbers. And this is also the part of tricky question and tricky computation in RSA, that how many large prime numbers you can select during one session. And then the second step was we will need to compute the n, that is system modulus, to by multiplying both of the numbers, यानी 17 और 11 को multiply करें, that is equals to 187. Then we will calculate the quotient of n, that is p minus 1 into q minus 1. p 17 के बराबर है तो 17 में से 1 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा, 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 160 आ जाएगा। अब हमने E को सिलेक्ट करना है और उसकी प्रॉपर्टी हमें पता है कि वो टोशंट ऑफ n से छोटा हो एक तो नंबर, यानी 160 से छोटा नंबर हो, और दूसरा वो रिलेटिवली प्राइम भी हो 160 के साथ। सो आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं। इसके लिए दो रूल कोई से भी अगर मतलब ये दोनों ट्रू होते हैं रूल, तो आप कोई भी चूज कर ले, जरूरी नहीं कि आप 7 ही चूज करें, आप कोई भी नंबर। आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 11 भी आ सकता है, ई एज 11 भी आप चूज कर सकते हैं क्योंकि रिलेटिवली प्राइम भी है और लेस देन 160 भी है। सो इसके लिए ये दो रूल्स होना जरूरी है। तो आप कोई भी डिफरेंट ई ले सकते हैं, लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे E7 लिया गया है। फिर आपने D को कैलकुलेट करना है, तो मैंने आपको D के कैलकुलेट करने के दो तीन तरीके बताए हैं, लेकिन वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड इज दैट यू नीड टू टेक द इनवर्स ऑफ E with the mod tangent of n. E inverse mod tangent of n. So E हमारे पास क्या है, 7 इनवर्स mod 160। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 23। आप करके देख लें, 7 को 23 से मल्टीप्लाई करें और चेक करें कि ये कॉन्ग्रेंट है विद 1 mod 160 के, यानी 160 से आप डिवाइड करें तो रिमाइंडर में 1 बचेगा।
सो डी हमने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमने पब्लिक और प्राइवेट की पेयर बना लेने हैं। पब्लिक की के जो पेयर था उसमें ई और एन रख देना है, और जो प्राइवेट की पेयर था उसमें हमने डी और एन रख देना है। आप देख रहे हैं पी के एक जगह पे हमने पब्लिक की में 7 और 1687 रख दिया, प्राइवेट में हमने 23 एंड 187 रख दिया। So let's start with the encryption part of this algo. So for ciphertext, we need, if suppose we have a message that is 88 and 88 raised to the power 7, 7 was the public key. You can see in this pair that public key is 7. So we will calculate it with the mod 187 and the answer will be 11. And for decryption, this is the cipher that has been received to the recipient, यानी 11 जो है वो रिसीवर को या बॉब को रिसीव हुआ है, तो 11 की पावर जो है वो 23 ली गई है। आप देख रहे हैं यहाँ 7 ली गई है, यहाँ 23 ली गई है। 23 हमारे पास क्या थी, 23 हमारे पास प्राइवेट की थी। तो 23 के साथ जब मॉड लेंगे 187 का तो हमारे पास 88 इसका आंसर आएगा, और दैट वाज ओवर प्लेन टेक्स्ट। सो अब आपको ये भी बात पता चल गई होगी कि फर्मेट-लिटिल थ्योरम और यूलर थ्योरम आपको बताने का मकसद क्या था, क्योंकि ये दोनों कैलकुलेशंस कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं हो सकती। सो आपको इनको थ्योरम के जरिए से ही हैंडल करना है। सो ये आपकी जो है वो एग्जांपल्स हैं। लेट्स टेक अनदर व्यू ऑफ द होल स्टेप्स। First, initially we need to select two prime number, then we need to calculate n, then quotient of n, then we have to select e, then we have to select d, and we have to create the public and private key pair, and we need to encrypt and decrypt it by using the different keys for different key for encryption and different key for decryption. And now you have seen that by using the finite field, I'm going to show you the statement and the feature of the RSA algorithm again. That was that the RSA algorithm is a powerful exponential in the finite field over integers, including the prime number. So you have seen that how we have multiplied the prime numbers and we have created and developed the finite field or system modulus by multiplying these prime numbers. And then we have calculated it by using the exponential in this modulo field. So this is the main feature and main idea. And you have seen that how this is possible, that we can encrypt and decrypt it by using the different keys. So let's, before conclusion, let's discuss some of the example. That is, I have copied these example from the William Stalling book, chapter number 9. So we have so much work to do. That is question number 9.2. We have about 5 different questions, and that is relevant to the RSA. Moreover, 9.3 and 9.4, you can see both questions are different than the previous examples. That is, in this example, in 9.3, you have to you have a ciphertext that is 10 as C, and you have E and N, but the N you have to calculate the M. So let do some mathematics and find out that how you can find M. And in 9.4 they have given us the system modulus, that is 3599. But important thing is that we need to find out the multiples of n. आपको पता है कि n हम p into q को find out करके बनाते हैं। आप दो नंबर ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करके ये वाला जवाब आए, और e आपको गिवन है, आपने इसमें से सिर्फ प्राइवेट की यानी d कैलकुलेट करना है। तो ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये आप लोगों ने जो है वो सॉल्व करने हैं, और आपने कोशिश करनी है कि जो तीनों क्वेश्चंस हैं इनमें से कोई भी पार्ट ना रह जाए, ताकि आपका जो एल्गोरिदम है वो क्लियर हो जाए। अब अगली बात जो इस लेक्चर की लास्ट बात है वो ये है कि आरएसए की सिक्योरिटी क्या है। सबसे क्या ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके से हम सिमेट्रिक की में ब्रूट फोर्स अटैक इस्तेमाल करते थे हम इसमें इस्तेमाल कर पाए। सो रिसर्च में ये आया है कि ब्रूट फोर्स की सर्च इनफिजिबल गिवन द साइज ऑफ नंबर्स, दैट इज इनफिजिबल, क्योंकि हर दफा जब भी कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट होगा 2 प्राइम नंबर्स रैंडमली सिलेक्ट होंगे और आप पब्लिक और प्राइवेट की पेयर सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्शन होगी। लेकिन ये कहा जाता है कि कुछ मैथमेटिकल और टाइमिंग अटैक्स हो सकते हैं
डिक्रिप्शन के ऊपर, और अगेन these both methods are very time consuming. हिस्ट्री में ये देखने में आया है कि ये दोनों जो मेथड्स हैं इनके जरिए से इस एल्गोरिदम को ब्रेक किया गया है, मगर अगेन वो ये दोनों जो मेथड्स हैं ये इनके लिए वी नीड वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन्स, and the computation, the difficulty and calculation and execution is very much higher than the all other algorithms. But it has also been seen that some of the ciphertext attacks has been done, that the recipient has the ciphertext and he was able to develop such encryption key relevant to the decryption part of the whole algorithm, and they have seen that some of the key pair can be used for breaking this code. But again, all these things are very complicated and very difficult, and but we cannot say that it is impossible to break. It is possible, but that is very computationally expensive. So thank you very much, students, for today's session. I know this algorithm is very difficult, but you have to conclude all the learning from the number theory lecture 1 till 3, and then you have to solve all the question relevant to the RSA that I have discussed with you, and this will be very helpful for you, and you can see your chapter number 8 and 9 of William Stalling book, and same chapters in Behrose Frozen book for the reference. You can see so many examples there for the RSA. So thank you very much, students. Hopefully you have enjoyed this session, and we will see you in the next session with the new algorithm. Again, that is the public key algorithm. Thank you very much, students.